Good evening. Today, first let me tell you what you are observing, what you just saw is the best example I can give you of talent that exists in Jaipur campus. It was only last month that I got to know some of these young people. Adi I only met 10 days ago for the first time. They came and interviewed me, did all the research, I don't know from where. And if they can produce such a thing, which is so professional, don't you think we have a great talent in Jaipur campus? I also had an opportunity, for the first time, although I'm from Jaipur, I'd never been to campus. मैं हर साल 15 साल से जयपुर में आ रहा हूँ और कभी कैंपस में नहीं देखा। इच्छा थी, सुना था, लेकिन कभी कनेक्टिविटी नहीं हुई। तो 22 तारीख को हमने रिक्वेस्ट करी यहाँ के डायरेक्टर साहब से कि हम आके जब तक बच्चों से नहीं मिले तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि उनको क्या ज़रूरतें हैं। तो 22 तारीख को सडनली in a short notice, our team organized a 200 plus student meet at campus. And the kind of questions that I saw them raise, the kinds of curiosity that they have, I was amazed. I was really amazed. So let's make sure that senior people like me who went to Ranchi do not feel that Jaipur does not have a great campus. Jaipur does have a great campus. Let's give them a big hand. The second thing I want to say before I proceed, everything that Adi and team has done in this video, first of all, it's too long. My wife even told them, God, why are you, but they couldn't reduce it. Time was too short. The second thing I want to tell you is that my purpose has been half served already. The work that you heard from Richie Mittal, the work you saw at the panel in terms of what Bitosa is all about, really is the reason we are all here. The second thing the next thing I want to tell you is that starting something is hard. Starting anything is hard. But I must tell you, starting or restarting is even harder. So let me admit, for those at least who came from out of town, that we had a false start. In the same auditorium, I was here, so was Podar Saab, so were many of us. We wanted to start this chapter in 2002. And we failed. We did a great event, but did not sustain it. So this time, I absolutely challenged these young people that said, look, I'm not interested in one event. One event doesn't do anything. We can have great dinner, we can meet, we can enjoy, we can meet our friends, but that doesn't do anything. So for last 1 month, the role that I've played with all of them is to focus a lot more on how to sustain, how to make it a permanent thing forever. And the reason I'm talking about that is, there is a tremendous potential, much bigger than what we even can imagine, sitting in India, about the power of the alumni networks. You'll be pleasantly surprised that the big universities like Stanford, like Harvard, like Berkeley, their network is so powerful that they have donated tens of billions of dollars to their institutions. Tens of billions of dollars. And that is because, why? Because
all of them, just like us, believe, truly believe that whatever we are, our institution played a great part in our lives. Is that not true? Can we not believe in it? So if we believe that there is a power to the network and we can learn from places around the world. There are places, universities that have done a great job. Some of them are in India now. IITs have done a good job, and that's what creates the brand. We now read in the newspaper IIT, BIT Pilani, but we do not yet read enough about BIT Mesla. Yet, we all know great many good people have come out of Mesla. You heard all evening about mentoring. They've used the word again and again regarding me as chief mentor. Let me make sure we all understand what a mentor is. Because for the last 15 years, that is what I have tried to experience. First thing you must learn is, before I started to think of myself as a mentor, I used to be CEO, founder of a company. Now what do CEOs, founder do? They run a company. They run a company. They tell their vice president, they tell their employees what to do. You run into this problem, do this. This is the plan, get this done. And that's what you're supposed to do if you're going to succeed. Let me tell you, mentoring is not that. Mentoring is opposite of that. You heard some of the speakers before, where if somebody comes to ask you or tell you what his problem is, and if you immediately tell you, do this or that, you're not a good mentor. आपने किसी के बारे में बताया था, one of you, कि ये कहीं भी कैंपस में चले जाते हैं तो वो एक्साइट कर देते हैं. So the role of a mentor is a guide. The role of a mentor is supporter. Whose dreams are we talking about? Young students. Somebody may have a dream to create a new app. Somebody wants to create a new water distillation system. So it is that person's dream that a mentor tries to help. So we as a mentor should not ever think of imposing our ideas, our thoughts to these people. Do you agree? Think about a great father. Think about a great grandfather. If they're truly great, they will be, or they should be proud of the fact that their child or grandchild did something he wanted to do. It is his passion. That's what makes him happy. What happens? If you don't do that, what happens? You do not let that person's passion grow. So here, the point I want to make is that we are lucky. The starting point for all of us is a great world-class institution. Now, how do I tell you it truly is world-class? I decided to say, look, everything I'm going to talk today would be based on my personal experiences in life. So yes, it is true that I was in BIT Ranchi from 59 to 63. When I came out of Ranchi, because my family was in Jaipur, Rohit, you are here, clearly everybody said, come to Jaipur, right? After Hindustan Motors, I came and worked with Rohit is our CEO. Can you stand up, please? Please. Ek baar dekhiye. Now, Rohit is running a great company. I was working in that company for 3 years, learned a lot. And just think, and I will tell you the power of the network right then. Some of my friends, just think, some of my friends
maybe they were from Delhi, maybe they were from Bangalore or Bombay. They had gone ahead to United States. Hello? I had never ever thought in my life that I was leaving Jaipur. I was happy. I was married. Everything was going fine. Why do I want to leave Jaipur? Yet, just think, my close friends from there said, Naren, we came here. It's a great opportunity to learn. Why don't you come? I said, come on. I don't know whether I can ever get admission to these top schools. I didn't know whether if I come, can I succeed? They said, no, come and try. So it is the support that I did get of my own batchmates that made me, let me honestly tell you, my family didn't want me to go. किसी बच्चे ने पूछा था ना कि पिताजी को कैसे समझाएं, वो हमारे साथ भी हो गया था। हमको मालूम था कि न तो हमारे घर वाले जाने देंगे, तो चुपचाप भाटिया साहब चुपचाप हम रांची गए, सारे काम किए, चुपचाप अप्लाई कर दिया और किसी ढंग से एडमिशन हो गया। फिर दिमाग में ये आ गया कि नहीं अब तो पैसा तो घर वालों से नहीं लेना, तो चुपचाप बॉम्बे में किसी हमारे नाना साहब थे, उन्होंने कहा वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ चले गए, उन्होंने स्कॉलरशिप भी दे दी। फिर आके हमने घर वालों को बोला कि हमको जाना है। आपको अजीब लगेगा बच्चों, आपको बोल रहा हूँ मैं ये कि मेरे को उस टाइम पे भूख हड़ताल करनी पड़ी। भूख हड़ताल, मैंने खाना बंद कर दिया, सच्ची बात है, खाना बंद कर दिया। तो मेरे ग्रैंडफादर को दया आ गई कि अब तेरी इतनी इच्छा है तो चला जा। मैं चला गया वहाँ पे, चला तो गया, लेकिन इतना डर था कि बर्कले जैसी यूनिवर्सिटी में और एडमिशन हो गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च। सर भाटिया साहब आप तो मेरे प्रोफेसर थे वहाँ पे, 59 में जब हम चालू किया तो आपने फैकल्टी में आ गए थे, तो इनकी भी तारीफ एक कर दूँ। आप सोचिए, भाटिया साहब कहीं खड़े हुए प्लीज़। सोचिए इनके बारे में, 4-5 साल पहले मेरे को कीनोट स्पीकर बुला दिया एक यूनिवर्सिटी में जयपुर में, SKIT। मैंने, वो तो लंबा था, 1.5 घंटे का लेक्चर। उसके बाद ये खड़े हो गए कि नरेंद्र मैं तेरा प्रोफेसर था, भूल गया क्या? इनका नाम मेरा नाम एक ही है, नरेंद्र है इनका भी नाम। तो टू सी हिम teach at that place was phenomenal, and to have him here is also phenomenal. So let's give him a big hand again. मैं इसलिए बोलता हूँ कि वहाँ पर गए हम, अच्छे टीचर होंगे, अच्छा स्कूल होगा, तभी वहाँ जाके हम बर्कले में MS के बाद MBA का भी अपॉर्चुनिटी मिल गई और सक्सीड हो गए। तो उससे क्या प्रूव हुआ? ये नहीं कि मैं अच्छा हूँ, प्रूव ये हुआ कि हम सबको, जैसे आपने सुना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल गई थी बिरला इंस्टीट्यूट में। लेट्स गिव ए बिग हैंड टू ऑल ऑफ अस। तो जब आपने सुना, कितने लोगों को सुना यहाँ पे कि BIT का नाम ले दो, कुछ कर दो तो डोर ओपन हो जाता है, राइट? तो वहाँ भी 15-20 हमारे जो दोस्त थे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। लेकिन क्या होता है फिर, उस टाइम पे तो ईमेल नहीं थी, उस टाइम पे तो तो आगे की बात ये बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पर हम लोग मिलते रहे आपस में 15-20 लोगों से, बाकी सबसे धीरे धीरे कनेक्शन कम हो गया। जयपुर में राजेंद्र दयाल मेरे यहाँ बैठे हैं, 2-4-5 जब जयपुर आते तो मिल जाते थे। पोद्दार जी हमारी गली में रहते हैं तो इनसे मिलना हो जाता था, लेकिन ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन इच्छा हमेशा होती थी कि BIT वालों से मिलें। इसीलिए 2002 में जब सुना यहाँ पे कर रहे हैं, इच्छा हो गई। लेकिन मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो जो
वहाँ पे जो ग्रुप था वो एक दूसरे को सपोर्ट करता रहा। आपने बात सुनी मेरी कंपनी की कि कंपनी में 150 लोगों ने बेनिफिट उठाया तो उसमें आधे इंडियन थे। उसका कारण समझिए आप कि जब लोगों को मालूम पड़ा कि मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट ले रही है बाहर से, तो मेरे जितने भी IT के फ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट एवरीबडी कॉल्ड मी कि मेरे को भी इन्वेस्ट करना है। अभी क्या मतलब है इसका? भाईबंदी तो हुई ना, नेटवर्क ही तो हुआ। तो कहने का मतलब पावर ऑफ द नेटवर्क इज़ वेरी वेरी हाई एट ऑल लेवल्स। आगे बढ़े उसके तो फिर 3 साल पहले 4 साल पहले रिची यू वर देयर इन बेंगलोर थे ना, तो बेंगलोर में बाय चांस हम तो भूल चुके थे, 2002 की बात, तो ट्राई किया था, हुआ नहीं। तो कहीं से इन लोगों को मालूम पड़ गया कि सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योरशिप लोग जानते हैं, तो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव की, हमको बुला लिया 2012 में। तो वहाँ बैठ के रची, हम, वरुण पांडे सब लोग बात करने लग गए। तो कहा भाई आपके तो कुछ करके दिखाना है। तो वहीं से बात चालू हो गई थी विटोसा ग्लोबल की। अब वो आगे बढ़ता देखिए कहाँ पहुँचता है। आपने रिची के बारे में सुना, ये बात बिल्कुल सही है। ये तो बरसों से काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ थे ही नहीं, तो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसे ही कलकत्ता वालों ने छोड़ा नहीं, लेकिन कहीं भी कनेक्टेड नहीं थी। जब कनेक्शन कम हो गया तो हमारा कनेक्शन पेट्रन साहब से भी कम हो गया, CK बिरला साहब से भी। क्यों? उनको हमें जानता भी था टाई के चक्कर में, टाई ग्लोबल के चक्कर में, लेकिन बिरला की बात नहीं होती थी। लेकिन जब हम सब लोगों ने उनको अप्रोच किया तो आप सोचिए वो भी रीइग्नाइट हो गए। So Mr. CK Birla had not visited Mesra for a number of years. He had not even visited. आप सोचिए, inspired by all of us, he not only went there, उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपया और डालूंगा। तो कहने का मतलब पावर ऑफ नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। अब इसकी आगे की बात और बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। तो जब वो 2002 में वहाँ गए, फिर इच्छा हो गई यार 2013 में तो 50th रीयूनियन कर लेंगे यार, तो कोशिश करनी चालू करी। मालूम पड़ा कि कैसे ढूंढे लोगों को, तो इतना टाइम लगा हमको, 3, 4, 5 महीने लग गए। हमको मालूम था 263 स्टेट्स दिखाइए, हम 263 बच्चे थे 3 ब्रांचेज में। हमने कोशिश करते 159 लोगों को ढूंढ निकाला 50 साल बाद। एक बहुत बुरी बात भी लगी कि मालूम पड़ा 29 लोग तो है ही नहीं, लेकिन वो तो भगवान की बात है। कभी न कभी 70s में, 80s में, 90s में वो तो सबके साथ होना है, हमारे साथ भी होना है। लेकिन मालूम पड़ गया कौन थे वो। हमने कहा कि कहीं भी हो मिले अपन। तो 72 ऑफ अस अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज 2013 में रांची पहुंच गए। और इतना अच्छा लगा कि आज की तारीख में 109 उन लोगों में से हम कंटिन्यूसली कनेक्ट हो गए, कंटिन्यूसली कनेक्टेड। मैंने कई लोगों से सुना कि आप अपने अपने बैचेस से अभी भी कनेक्टेड हो ना। हर आदमी अपने बैच से तो कनेक्ट हो ही जाता है, और अब तो फेसबुक आ गया, लिंक्डइन आ गया, तो और ज़्यादा हो जाता है। सही बात है नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि हमने मालूम किया कि ये जो चीज़ हो सकती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ एक किताब की, पढ़ी। तो वहाँ पे बैठ के हमने सोचा कि हमको एक दूसरे के बारे में सीखना है। तो हमने 59 में ऐसी किताब निकाली थी, राइट, राजेंद्र यादव ने, सोवेनियर। इसमें क्या था, सिर्फ पिक्चर और आपका एड्रेस वगैरह था, राइट। तो इससे ढूंढ निकाली। फिर उसके बाद में, हाँ,
हाँ वो बात भी सही है। तो हर चीज़ इसमें छोटी छोटी हर एक की बातें लिखी थी। तो 3 साल पहले हमने कोशिश करी ऐसा करते हैं कि सबकी स्टोरी ढूंढो, तो ये किताब छप गई। इसमें जितने भी लोग हमको मिले उनकी स्टोरी लिखी है, बिफोर आफ्टर फैमिली। उनके बच्चे क्या किया, तो मालूम पड़ रहा है। और किसी ने तो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना डाला, कुनार है, मिस्टर कुनार हमारे सिविल इंजीनियरिंग वाले। किसी ने बहुत बड़ी कंपनी बना दी, किसी ने ये कर दिया। तो पढ़ पढ़ के ही इंस्पिरेशन हो रहा है। फिर इसकी एक वेबसाइट भी बना डाली, उसको हमेशा अपडेट भी किया जा सकता है। तो ये जो पावर है ये बहुत कंटिन्यूस है। यहाँ तक ही नहीं है, उसके बाद की बात बताऊँ मैं आपको। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की डेथ हो जाती है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अब कैसे जाए उनके पास। तो ऐसा ही कुछ 2014 में हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और रिश्तेदार भी हैं, वीरेंद्र छाबड़ा, उनकी डेथ हो गई। जयपुर के हैं, यहाँ पे कई लोग जानते भी हैं। महावीर जी आप जानते हो, अजमेरा साहब है। तो मेरे साथी भी थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, उनकी डेथ हुई। आप सोचिए, मालूम पड़ती immediately in day everybody came to know, and we put together a memorial of him to be presented to his family in matter of days. देखिए सर, this was done. Printed book, memorial with comments of everybody. मैं बहुत चाह रहा था कि हो सके तो उनकी मिसेस को भी यहाँ बुला लें। वो ही नहीं, उनका जो बेटा है समेश, he has become very close to me. तो कहने का मतलब इट्स नॉट जस्ट आवर बैच, उनकी फैमिली से भी हमारा कनेक्शन हो जाता है। अच्छा है ना ये बात, अच्छी है ना। तो एक और मैं पर्सनल बात बताना चाहूँगा, और बहुत ही पर्सनल है वो ये है कि मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ, उनका नाम था महेंद्र जैन, उनकी भी कुछ साल पहले अमेरिका में ही डेथ हो गई। BIT के पढ़े हुए थे। इतना भी याद है मेरे को, जब उनकी शादी की बात आई थी तो उन्होंने कहा अच्छे ही होंगे, वो भी तो BIT के हैं। तो सोचिए, शादी करने में भी लोग सोचते हैं कि यदि BIT के हैं तो अच्छे ही होंगे, है ना। सब शादी कर लेते हैं। ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने। जिस टाइम पे हम थे वहाँ पे तो एक भी लड़की नहीं थी। So young people who are here, you may have more opportunities to be able to meet each other. लेकिन मैंने एक स्पेशल परमिशन ले ली है। मेरी सिस्टर इन लॉ को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि महेंद्र जी तो नहीं हैं, लेकिन उनको बहुत प्यार था BIT से, क्या आप आ सकती हैं। तो अंजना प्लीज़ स्टैंड अप, प्लीज़। इनके 2 क्लासमेट्स भी यहाँ हैं, कैन यू प्लीज स्टैंड अप। इनके 2 क्लासमेट हैं, तीन, बहुत अच्छा। अब सोचिए, मैं आया यहाँ पे, इन्होंने आते ही कहा हम महेंद्र जी की क्लासमेट्स, कितनी खुशी है। तो आप सोचिए, अलुमनाई की पावर तो हर तरफ है, राइट। अब उसके बाद फिनिश करूँ मैं कि एल्यूमिनाई के बेनिफिट्स क्या हैं। वो आपने काफ़ी कुछ सुन लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा डीपर जाना चाहूँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो घूम फिर के बात ये होती है कि पुरानी बात है ये तो, कि गुरु चेला का तो रिश्ता होता ही है, हजारों सालों से होता है। अब इंस्टीट्यूशन का हो गया आपसे, राइट, तो उसका वैल्यू तो है ही ना।
लेकिन मेंटरिंग की जब बात आती है तो दूसरी बात है। ये बच्चों आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। ए मेंटी सेलेक्ट्स ए मेंट, इसका मतलब समझो आप, आपने बहुत सुना है, बहुत सुना है। उसका मतलब ये, आप आज इतने सीनियर से मिलोगे, उनका नाम भी वेबसाइट पे देखने लग जाओगे और उनके बारे में मालूम भी कर सकते हो आजकल, लेकिन आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन इनमें से, इतने लोगों में से आपके लिए योग्य है। मेंटर आपके लिए योग्य है। आपको कौन सिखा सकता है, आप किससे सीखना चाहते हो। यदि आपने राइट 2 4 5 मेंटर ढूंढ लिए तो आपकी लाइफ बन जाएगी। सो माई रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, इज टू मेक श्योर यू फाइंड अ मेंटर। इज इट ट्रू? और देखिए कितने मेंटर यहाँ बैठे हैं, जयपुर में ही बैठे हैं, राइट? तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले 1 साल में कोई मेंटर ढूंढ लो, ठीक है? अब उसके बाद चले आगे, तो बेनिफिट्स आपने सुने हैं, इंटर्नशिप भी है, मेंटरशिप की बात करी, प्लेसमेंट की बात हो चुकी है, रोल मॉडल्स। अविनीश साहब ने कहा कि रोल मॉडल से ही काम नहीं होगा, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन रोल मॉडल यदि आप सुने तो कभी कभी इंस्पिरेशन आ जाता है कुछ करने का, राइट? तो कहने का मतलब, यदि आप किसी के पास जाओ तो सबसे पहले काम ये करो, आपको यदि आगे बढ़ना है तो उन्हीं से पूछो कि सर 15 मिनट में आप अपनी बात बताइए, 15 मिनट में आप अपनी बात तो बताइए। तो यदि आप जाके अपनी बात नहीं करो और उनकी बात सुनो, तब मेंटर मिलते हैं। क्या मतलब वो समझे? बच्चों एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट टू एवर मेक फ्रेंड्स, इफ़ यू एवर वांट्स टू मेक फ्रेंड्स, एक किताब पढ़ लेना, डेल कार्नेगी की। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड डेल कार्नेगी? बहुत कम ने पढ़ी है। सर, हाउ टू विन फ्रेंड्स। वेरी गुड। तो बच्चों एक मिनट सुनोगे? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसकी एक कहानी बता दूं मैं। उसमें नंबर 1 बात ये कही है कि पहले क्या करो, पहले सुनो, पहले उनकी सुनो। जब आप उनकी सुनोगे तो वो आपकी सुनेंगे। समझ आई ना बात? किसी से भी दोस्ती करनी है, मेंटर से दोस्ती करनी है, तो पहले आपको उनको जानना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आखिरी बात ये है मेंटरिंग की, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मेंटरिंग में हुआ है, वो एक इंस्टीट्यूशन है टाई राजस्थान या टाई ग्लोबल। तो टाई ग्लोबल was started in 1994 in United States, Silicon Valley। हम जैसे कुछ लोगों ने मिलके, जिन्होंने सोचा था कि हमको कुछ आ गया अमेरिका में। अब आप सोचिए, अमेरिका में गए थे 0 पैसे से, 0 पैसे से। जब गए थे तब सिर्फ इंजीनियर थे, मैनेजर बन गए, शायद किसी ने डायरेक्टर बना दिया, किसी ने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो हर लेवल पे रुकावटें पड़ी, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था सक्सेसफुल मैनेजर। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट सक्सेसफुल नहीं देखा था। फिर इस बात में बहुत टाइम लगा उनको समझ में आने में कि ये तो मैनेजर ही नहीं, ये तो CEO भी बन सकता है। इट वॉज ओनली इन 80s दैट सम ऑफ द पीपल क्रिएटेड देयर ओन कंपनीज एंड सक्सीडेड। अब सोचिए, आप जो IT में हैं वो तो समझ ही जाएंगे, अब क्या हो गया है, उल्टा हो गया। आपको एक बात बता दूं, बहुत खुशी होगी कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 500,000 इंडियंस हैं। जब मैं वहाँ गया था तो 1,000 थे, 1,000 से 500,000, 500 गुना। और उन लोगों ने जितनी कंपनियाँ बनाई हैं, किसी और नेशनलिटी वालों ने नहीं बनाई। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात आपको ये लगेगी सुन के कि उन लोगों ने जो ब्रांडिंग कर दी अपने देश की, किसी और जगह से ब्रांडिंग नहीं हुई है। क्योंकि उनको आज की तारीख में आप यूरोप चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको दिखता है ना कोई, अरे आप IT के हो क्या, राइट?
सो आवर ब्रांड आउटसाइड हैज़ बिकम IT। उससे अपनी इज्जत बढ़ गई। और पैसा भी आज VC के पास जाओ सिलिकॉन वैली में, वो इंडियन को पहले देते हैं। इसलिए नहीं कि इंडियन को वाकई अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए हमारी इच्छा हुई स्टार्टिंग 2000 में कि भाई जो हमने सिलिकॉन वैली में सीखा है वो इंडिया में भी लाना है। तो यहाँ पे हमने सोचा चैप्टर बनाने चालू करो। बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई सब जगह चैप्टर बनने चालू हुए हैं। अब 23 चैप्टर हैं यहाँ पे। 23 चैप्टर ऑफ 61 आर इन इंडिया। तो हमारी ये बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके बारे में कि कई बच्चों ने पूछा कि हमको मेंटर चाहिए तो कहाँ जाएं। अच्छी बात है, जयपुर में ही बहुत है। वो ये कि एक टाई राजस्थान आई बिकेम द फाउंडर एंड दैट इंस्टीट्यूशन इज ऑलरेडी flourishing. The hundreds of startups in Jaipur, and you now have incubators, accelerators, angel funding, and on and on. और ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है जयपुर कैंपस वालों कि जयपुर में बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बन चुका है। और जयपुर कैंपस में जो लोग हैं उनको इस दायरे में नहीं रहना है कि सिर्फ कैंपस से ही सीखना है। कैंपस में तो सीखोगे, पास तो होना ही है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप जाके कुछ न कुछ बाहर सीख सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इतनी मीटिंग्स होती है इवनिंग में, डिनर, लंच, कि आप सीखते रहो। सो इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आखिरी बात करके फिनिश करना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं समझ लेना कि आपको ही कल एंटरप्रेन्योर बनना है। इन्होंने कहा वीडियो में कि आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी एट एज 48 व्हेन आई हैड 3 चिल्ड्रन। आप सोचिए कितनी बड़ी रिस्क थी ना। 3 बच्चे हैं, कॉलेज में जाना है, शादी करनी है, सब कुछ है, लेकिन किसी भी एज में चालू हो सकता है। बट you must be somebody that thinks like a entrepreneur. आप कंपनी में रहोगे तो भी एंटरप्रेन्योर के हिसाब से काम करो। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब एक बता देता हूँ, वो बात सोचते रहना कि आपको ब्लाइंडली जो बॉस ने कह दिया वो कर दिया तो यू आर ए गुड एम्प्लॉय। बॉस जो बोलता है और आप वो कर देते हो, दे विल से यू आर ए गुड एम्प्लॉय। लेकिन बॉस ने कुछ कहा नहीं, फिर भी आपने करके दिखा दिया, या बॉस ने जो कहा आप उनके पास वापस जाके बोले कि सर आपने तो ऐसे कहा था, मैं ऐसे कर दूँ तो इससे डबल काम हो जाएगा, तो क्या होंगे आप? क्या होंगे? या तो बोलेगा ग्रेट एम्प्लॉय, या बोलेगा यू आर थिंकिंग लाइक ए एंटरप्रेन्योर। सो बिकम लाइक दैट। सो कैन आई आस्क यू टू एवरी सिंगल वन ऑफ स्टूडेंट्स हियर टू absolutely think like an entrepreneur. But even more, India needs entrepreneurs, job creators, नई जॉब सीकर्स। हमको बहुत जॉब्स बनाने हैं इंडिया में। अभी मोदी जी के साथ मिल गया है तो उनकी भी यही चीज़ है कि लाखों लोग जॉब्स की ज़रूरत है। वो करेंगे कौन? एंटरप्रेन्योर्स। सो लेट मी एंड बाय थैंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल this young team has done such a good job. What I want to make sure you give them a big hand. लेकिन मैं आपको अब जाने नहीं दूंगा जब तक कि एक बात और सुन लो, और ये बात सबसे बड़ी है सीनियर्स के लिए। यदि हम चाहते हैं कि इस बार 2002 की जैसे फेल नहीं हो जाए, 2002 में फेल हो गए थे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे सिलिकॉन वैली में फेल को फेल नहीं मानते ही नहीं फेल। अरे नहीं था, कोई गलती हुई होगी, ठीक कर लेते हैं, अब दोबारा करते हैं, दोबारा नहीं हुआ दोबारा करते हैं। तो अब की बार अपन ने ऐसा काम किया है कि अब सक्सीड होना ही है। लेकिन आप लोगों को ये सोचना है, सीनियर्स को, कि आप किस ढंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सिर्फ 3 ही रास्ते हैं कंट्रीब्यूट करने के, सिर्फ 3 रास्ते, चौथा तो है ही नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं। तन मन धन। यू कैन ईदर गिव मनी,
you can give time, a lot of volunteer work, और great ideas and support. तो मैं ये चाहूँगा कि ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग बन जाए. तो हमारा गोल ये था कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाए इस इवेंट के पहले कि सारा खर्चा निकल जाए और इतने पैसे बच जाए कि कम से कम साल भर का काम चलता रहे. तो मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ये लोग बच्चे लोग और डिटेल बता सकते हैं. हमारा गोल था कि 15 लाख रुपए हमको इकट्ठे करने हैं. 15 लाख. तो मैं आपको ये तारीफ करूँगा कि 10 लाख ऑलरेडी कलेक्ट हो गए. लेट्स गिव ए बिग हैंड. So I will leave you thinking if any one of you would be willing to help this chapter become a strong chapter by contributing some money as a senior so that this will become a stable chapter. दूसरी बात ये करिए, आप में से कोई आइडियाज़ हो तो इनको दीजिए. और फाइनली बच्चों, आप तैयार हो वॉलंटियर बनने के लिए? बोलिए जोर से. तो जितना वॉलंटियर वर्क करोगे उतना जल्दी सीखोगे. जितना दोगे उतना पाओगे. राइट? जितना दोगे तो बोलो जोर से, करोगे? और क्या करोगे? मेंटर ढूंढोगे और बाहर वाले लोगों से कनेक्ट करोगे. आप टाई जैसे या एनियन जैसे या स्टार्ट वॉइसेस जैसे जगह जाके देखोगे कम से कम. So if you do all of those things, my coming here has been useful. Thank you very much.